Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra Batul, Senior Medical Officer from ICU. Today, my topic of discussion is management of septic shock. I have no financial disclosure to disclose. The learning objectives of today's discussion are definition of septic shock, choice of fluids, choice of antibiotics and timing of administration, choice of vasopressors, when to start vasopressors and what is going to be our target mean arterial pressure, when to give fluids, when to stop fluids, and what is the optimal fluid therapy. So let's begin. This is a case scenario. A 42-year-old female diabetic presented to ER with complaints of fever and dyspnea. On examination, she was drowsy and had respiratory distress. pH is 7.43, PCO2 28, bicarb 16, PaO2 49. She was intubated. Echo showed an ejection fraction of 60% without any right heart strain. Her X-ray and labs are given below. Please have a look on the labs and X-ray. Okay. So, which of the following is required as a part of sepsis 3 definition of septic shock? A. Systemic inflammatory response syndrome. B. Systolic blood pressure of less than 90 mmHg. C. Mixed venous oxygen saturation of less than 65. And D. Blood lactate levels of more than 2 millimoles. Any guess or any idea? Blood pressure. ओके डी, किसी ने डी भी कहा है, लैक्टेट लेवल्स कहा है. चलें तो फिर अब हम देखते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या है. सो द आंसर इज ब्लड लैक्टेट लेवल्स ऑफ मोर देन 2 मिलीमोल्स पर लीटर. ये सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन है. अब इसका क्राइटेरिया आगे देखते हैं. तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, सेप्सिस, सिवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक, एंड द डेफिनेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. सबसे पहले फ्रॉम 2001 to 2016 sepsis was suspected infection plus SARS. Severe sepsis was sepsis plus hypotension or any other marker of organ dysfunction, and septic shock was sepsis plus hypotension even after the patient was adequately fluid resuscitated. But these were followed till 2016. In 2016, a paper was published in JAMA which modified the definition of sepsis. It removed SARS from the definition and introduced QSOFA. So what was the reason of introducing QSOFA in the definition? Because SARS, according to the experts, SARS is an inflammatory condition. It can be present in the patients even if they don't have an infection, like cases of surgery, pancreatitis, burns, vasculitis and autoimmune diseases. They might fulfill the criteria of SARS, but they might not have an infection. So this definition was modified in 2016 and QSOFA was added into it. The category of severe sepsis was removed and septic shock was defined as sepsis plus the need of vasopressors to keep MAP of above 65 and plus lactate of more than 2. तो ये डेफिनेशंस थी जो 2016 में जामा ने हमें प्रेजेंट की. फिर क्या हुआ, अब हम 2023 में हैं और फिर से डेफिनेशंस मॉडिफाई हो चुकी हैं अब तक. In 2021, Severe Sepsis Campaign said that now QSOFA is no longer included in the definition. Why? Because studies have shown that QSOFA score is a proxy of mortality. What does this mean? कि जो patients QSOFA के criteria को fulfill करेंगे, they might have an increased risk of mortality, but आप उनको लेबल नहीं कर सकते कि इनको इन्फेक्शन है. तो उन्होंने QSOFA को इसमें से निकाल दिया और सिंपल जो अब डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं वो सस्पेक्टेड सेप्सिस है प्लस सोफा स्कोर, राइज इन सोफा स्कोर ऑफ 2 or more than 2. So this is the definition which we follow now. Again,
अब हमें डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, सेप्सिस की भी, सेप्टिक शॉक की भी, और सेप्टिक शॉक में लैक्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमारा जो पहला आंसर था वो लैक्टेट था। ठीक है, अब हम सिनेरियो की तरफ फिर से चलते हैं। इट्स अबाउट 15 मिनट्स सिंस द टाइम ऑफ ट्रायज, लैक्टेट लेवल्स आर 4, IV access has been maintained, monitor now shows heart rate of 102 per minute, their rhythm is regular, blood pressure is 79/39 mmHg and MAP is of 52. Which fluid will you start for the resuscitation of this patient? कौन सा फ्लूइड आप देंगे, कौन सा फ्लूइड आप देते हैं ER में, या अपने पेशेंट का जिसका BP ड्रॉप कर रहा हो तो आइसोटोनिक सेलाइन, ठीक है, और कुछ और देते हैं, हमारी प्रैक्टिस है हम आइसोटोनिक सेलाइन देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम क्या देते हैं और हम वो क्यों देते हैं और आइसोटोनिक सेलाइन क्यों नहीं देते। जी सर, डी, ठीक है, बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, चलें, आंसर इज बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स। हम बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स को प्रेफर करेंगे ओवर आइसोटोनिक सेलाइन। देखते हैं क्यों। मेटा एनालिसिस ऑफ 32 ट्रायल्स involving 16,000 cases showed the patients who were given starch infusions had increased need for renal replacement therapy and AKI. For isotonic saline, again meta-analysis showed that it increases renal toxicity and mortality. For albumin infusion, the meta-analysis of randomized controlled trials having 12,000 patients showed that there is no difference of 90 and 30-day mortality. However, albumin is costly. It might not be readily available. Balanced crystalloids में meta-analysis of 14 randomized controlled trials showed that there is decreased mortality with balanced crystalloids. अब आगे एक और हम देखते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टेमिक रिव्यू हुआ और मेटा एनालिसिस हुआ। इसमें रफली इट वाज कंडक्टेड इन 2021 to 22, इसमें रफली देयर वर 20,000 पेशेंट्स वर एनरोल्ड इन दिस। इसमें सॉरी, दे वर नॉट एनरोल्ड, बेसिकली दिस इज़ द मेटा एनालिसिस जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स 8 थे और रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट्स से 7, इनको स्टडी किया गया। टोटल हमारे पास जो पूल था वो 20,000 पेशेंट्स का था। इनको 2 आर्म्स में रैंडमाइज कर दिया। एक आर्म था जो बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स ले रहा था, एक आर्म था जिनको हम नॉर्मल सेलाइन दे रहे थे। हमारा जो प्राइमरी एंड गोल था वो देखना था 28 डे मॉर्टेलिटी एंड AKI। जो सेकेंडरी हमारे आउटकम्स थे इसके वो थे 90 डे मॉर्टेलिटी, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड नीड फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस मेटा एनालिसिस ने ये शो किया कि देयर वाज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी इन द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स दैट वाज रिसीविंग बैलेंस्ड क्रिस्टलॉइड्स। There was significant reduction in incidence of AKI in the group that was receiving balanced crystalloids. तो इससे हमें एक डायरेक्शन मिली कि yes, balanced crystalloids should be our choice instead of isotonic saline. ठीक है, किसी ने पूछा नहीं कि रीज़न क्या है। क्वेश्चन आता है ना कि हमने तो स्टडीज़ पढ़ा दी और इसमें रीज़न नहीं पता हमें। सो बेसिकली जो बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन है इट इज़ क्लोजली सिमिलर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन। सो व्हेन यू गिव बैलेंस क्रिस्टलॉइड टू अ पेशेंट, उसमें पेशेंट की जो एसिड बेस, बॉडी की एसिड बेस फिजियोलॉजी है उसमें कम डिस्टर्बेंस होती है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल सेलाइन ग्रुप। जब आप नॉर्मल सेलाइन देते हैं, द क्लोराइड कंटेंट इन द नॉर्मल सेलाइन इट डिस्टर्ब्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। द पेशेंट माइट देन हैव हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट में AKI के चांसेस बढ़ जाते हैं, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के चांसेस बढ़ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट में मॉर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए हम बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स को
फेवर करते हैं और करना चाहिए कि जब आपने एक पेशेंट को रिससिटेट करना है, ठीक है। And what about the safety in patient with renal injury, kidney injury and hyperkalemia? सर उसमें भी ये ज़्यादा सेफ़ है, जो बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स हैं, दे आर मोर सेफ़, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अगर हम दोबारा से नॉर्मल सेलाइन से क्लोराइड लोड इंक्रीज़ करें तो हम सारा वो बैलेंस को और दोबारा से मतलब एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और क्रिटिकली इल पेशेंट्स में वैसे ही मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ी हुई होती हैं और डिरेंज फिजियोलॉजी होती है उनमें ऑलरेडी, सो इट इज़ अ गुड चॉइस, बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स आर गुड चॉइस। अब चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। अब इसकी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 2001 से पहले देयर wasn't a very good standard of care कि how we are going to manage sepsis or septic shock, and due to this the mortality rate was very high. It was around 40 to 50% in the patients they were receiving usual care. सबने सोचा क्या करना चाहिए, there should be a system जिसको आप फॉलो करें और mortality को डिक्रीज़ करें. So this led to एक ट्रायल 2001 में एक ट्रायल हुआ डिट्रॉइट में and it was a single center trial. It was known as रिवर्स ट्रायल. रिवर्स ट्रायल में ने एनरोल किया 263 पेशेंट को और उसने उनको 2 ग्रुप्स में रैंडमाइज कर दिया. एक ग्रुप था जो यूजुअल केयर ले रहा था जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कह रहे हैं, जो फिजिशियन डिस्क्रिप्शन पे है. एक ग्रुप था जिसको हम कह रहे हैं अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी, उनको हमने ये थेरेपी दी है. इनका जो इंक्लूजन क्राइटेरिया था वो सेप्सिस, BP less than 90 after fluid and lactate of more than 4. So ये जो ग्रुप है अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी ग्रुप, इसके कुछ गोल्स थे कि हमने अपना ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे लेकर जानी है. देयर गोल वॉज कि सेंट्रल वीनस प्रेशर को 8 to 12 में रखना है बाय गिविंग फ्लूइड्स, मैप को मोर देन 65 रखना है बाय गिविंग वेजोप्रेसर्स, एंड सेंट्रल ऑक्सीजन सेचुरेशन को मोर देन 70% रखना है बाय गिविंग ट्रांसफ्यूजन्स एंड डोब्यूटामीन. ये सारी चीज़ें इस ग्रुप में हुई हैं. जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो गोल्स थे वो ये था कि CVP को हमने 8 to 12 तक रखना है बाय गिविंग फ्लूइड्स, मैप को मोर देन 65 रखना है बाय गिविंग वेजोप्रेसर्स. सो जब ये ट्रायल कंडक्ट किया गया और इसके रिजल्ट आए, दे वर रेवोल्यूशनरी. इसमें ये देखा गया कि ये ग्रुप जिसमें गोल डायरेक्टेड थेरेपी हुई थी, इसमें मॉर्टेलिटी 33% कम थी एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्रुप. सो लोगों को एक डायरेक्शन मिल गई कि हमने सेप्टिक शॉक को कैसे ट्रीट करना है, एंड फॉर द कमिंग ईयर्स इस गोल्स को सामने रख के सेप्टिक शॉक को वर्ल्ड वाइड ट्रीट किया गया क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी कम थी. What's the difference between these two groups? सर इसमें हम जो डिफरेंस है नीचे आ जाता है. सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन कंट्रोल ग्रुप में वो नहीं मेजर करे. अब इसको मेजर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक सेंट्रल वीनस कैथेटर्स पास करने हैं, मॉनिटरिंग करनी है, डोब्यूटामीन देनी है पेशेंट को, उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ है. तो इसमें ज़रा एग्रेसिव मैनेजमेंट है. उसमें उन्होंने 2 पैरामीटर्स देखे हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस. और मॉर्टेलिटी इसमें कम आई. 2001 की बात है ये. अब इस गोल्स को फॉलो किया गया, पर लेकिन कब तक, इसको भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये सही है या नहीं है. सो इन 2014 3 different trials were conducted on 3 different places. Process trial was conducted in 31 ERs in US. Promise trial was conducted in 56 hospitals of England, and Arise trial was conducted in 51 centers mainly of Australia and New Zealand. इन्होंने क्या किया कि टोटल जो पूल था वो अराउंड 4000 रफली पेशेंट्स का था. उसमें 1800 को वही अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी दी जा रही थी और 2300 पेशेंट्स को यूजुअल केयर दी जा रही थी. और इन्होंने देखा
कि मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो दोनों सेम है। सो व्हाट इज़ द यूज़ कि आप पेशेंट को अगर नीड नहीं है तो सेंट्रल लाइन पास कर दें, आप पेशेंट का सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन बार बार मेजर करें, आप उसको ऊपर रखने के लिए पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन्स करें, कोई नीड नहीं थी। इन रिजल्ट्स ने हमें ये बताया। बहरहाल एक चीज़ जो इन चारों ट्रायल्स ने हमें कॉमन बताई वो ये थी कि आपने पेशेंट को फ्लूइड से रिससिटेट करना है और आपने पेशेंट को 30 ml पर kg हिसाब से फ्लूइड देना है एंड इट शुड बी completed in 6 hours। आपका जो पेशेंट आता है और आप उसको सेप्टिक शॉक लेबल करते हैं, आपने उसको फ्लूइड रिससिटेशन देनी है 30 ml पर kg के हिसाब से इन 6 hours इट शुड बी completed। हमें इन ट्रायल से ये पता लगा। बाकी आपको एक एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेप्टिक शॉक को फ्लूइड से और सिर्फ वेज़ोप्रेसर से विदाउट एनी अदर एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग भी मैनेज कर सकते हैं। ये हमें इन्होंने बताया, ठीक है। और अब हम बेसिकली इस अप्रोच को भी लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके पहले हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा है कि फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारे पास लैक्टेटेड रिंगर है, ठीक है, और किस हिसाब से हमने देनी है एक पेशेंट को के हिसाब से, ठीक है, और उसको हमने एक पीरियड में एक अच्छे ही पीरियड में इनिशिएट कर देना है और कंप्लीट भी करना है, ठीक है, मॉर्टेलिटी डिक्रीज़ करने के लिए। यहाँ तक हमने ये चीज़ सीखी है। नेक्स्ट, now it's about 45 minutes since the time of triage. Pan cultures have been taken. Ringer 1 liter is being infused as bolus via 16 gauge cannula. What is the optimal time to give antibiotics to the patient? क्या optimal time है? आपको कब अपने patient को antibiotic दे देनी चाहिए? 1 hour में, 2 hours में, roughly 3 hours के अंदर? सॉरी सर, बी, ठीक है। विद इन 6 hours कब तक देनी चाहिए? आपके पास पेशेंट आ गया है, 3 hours में दे देनी चाहिए, ठीक है, सही है। चलिए अब हम देख लेते हैं जी। सर नो, बोथ, लाइक डॉक्टर्स ऑर्डर करेंगे, उनको पुश करेंगे तो वो देंगी, बिल्कुल देंगी, ठीक है। इसमें हाँ, क्योंकि ये ऑर्डर हमने उनको देना है, उनको लिखवाना है। चलें देखते हैं कि 2 hours है, 3 hours है, क्या है आंसर, क्या है? विद इन 1 hour आप 1 घंटे के अंदर एंटीबायोटिक देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आप मॉर्टेलिटी इंक्रीज़ कर देंगे पेशेंट की, और मॉर्टेलिटी हर घंटे के साथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। आपका पेशेंट मॉर्टेलिटी की तरफ चला जाएगा, इसलिए ये इतना ज़रूरी है कि आपने 1 घंटे में अपनी एंटीबायोटिक देनी है पेशेंट को। सो a trial was done, 50,000 रफली पेशेंट्स थे, 149 हॉस्पिटल्स थे न्यूयॉर्क के इन 2017। पेशेंट्स में सेप्सिस प्रोटोकॉल was initiated in ER within 6 hours after arrival. Patients were excluded in whom 3-hour bundle was completed more than 12 hours, जिनमें लेट हो गया था उसमें कर दिया। प्राइमरी आउटकम क्या था? इट वॉज इन हॉस्पिटल एडजस्टेड मॉर्टेलिटी देखनी थी हमने, और क्या देखा? विद ईच एडिशनल आवर ऑफ टाइम फ्रॉम ED अराइवल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, it was associated with 1.04 increase odds of in hospital mortality. पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी इंक्रीज़ हो गई। फर्दर क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट्स, देखें आप, पी वैल्यू इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। फर्दर 1.07 फॉर पेशेंट्स रिसीविंग वेजोप्रेसर्स वर्सेस 1.04 वर्सेस पेशेंट्स नॉट ऑन वेजोप्रेसर्स। आगे इसने एक और बात की कि ऐसे पेशेंट्स जो कि वेजोप्रेसर्स पे थे उनमें मॉर्टेलिटी और इंक्रीज़ कर दी आपने। नॉर्मली भी हमने मॉर्टेलिटी इंक्रीज़ कर दी, और ऐसे पेशेंट्स जिनको हम वेजोप्रेसर्स दे रहे थे उसमें मॉर्टेलिटी और इंक्रीज़ कर दी एंटीबायोटिक देर से देकर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 घंटे में दे दें। एक और स्टडी हुई, इसमें 35,000 पेशेंट्स थे, 21 हॉस्पिटल्स इन नॉर्थ कैलिफोर्निया।
It included 13.3% with septic shock and 52% with severe sepsis. The primary exposure was antibiotic given within 6 hours of ER registration and primary outcome जो हम देख रहे थे वो in hospital mortality देख रहे थे. इसमें भी सेम चीज़ आई. The adjusted odds ratio for hospital mortality was 1.09 for each elapsed hour. आपके mortality patient के odds बढ़ गए कि उसमें mortality होगी. The increase in absolute mortality associated with an hour's delay was 0.3% for sepsis and 1.8% for shock. Again, उसकी mortality और increase हो जाएगी. आप अपने patient को mortality की तरफ धकेल रहे हैं, उसको antibiotic टाइम पर स्टार्ट ना करवा कर. आगे हमारे पास ये है कि हम क्या देते हैं. मोस्टली जो हमारे एंटीबायोटिक कवरेज शुड बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इट शुड कवर बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. उसके अलावा भी देयर आर पेशेंट हु आर एट हाई रिस्क ऑफ MRSA एंड MDR. क्या कोई बता सकता है कि कौन से पेशेंट्स हाई रिस्क ऑफ MRSA होते हैं, कौन से पेशेंट हाई रिस्क ऑफ MDR होते हैं? यस सर. जिन्होंने पहले से एंटीबायोटिक ली हो लास्ट 20 डेज. हाँ जी, Hemodialysis in last 30 days. 30 डेज. Those who are living in nursing homes. सही है. ठीक है, तो ये पेशेंट्स हैं जो हमारे पास हाई रिस्क ग्रुप्स हैं. तो अगर कोई हाई रिस्क है लाइक MRSA आपको हाई रिस्क लग रहा है तो आप एंटीबायोटिक ऐसे देंगे जिसमें हमें MRSA कवरेज हो. और अगर हाई रिस्क ऑफ MDR है तो देन आइडियली 2 एंटीमाइक्रोबियल शुड बी गिवन विद ग्राम नेगेटिव कवरेज. और एंटी फंगल्स हम उन पेशेंट्स में देते हैं इफ़ दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एंड फंगल इन्फेक्शन, उसमें स्टार्ट करते हैं पैरिक, वरना नहीं. और जब आपके पास कल्चर्स अवेलेबल हो जाएं तो आप अपने एंटीबायोटिक को उसके हिसाब से टेलर कर लें जो उससे वो सेंसिटिव है. सो एंटीबायोटिक के हिसाब से यही सीखा है हमने कि आपने जो देनी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, प्लस आपने 1 घंटे के अंदर देनी है, उससे हमारे पेशेंट की मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट, इट्स अबाउट 1 hour नाउ. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैव बीन गिवन. She is sedated and passive on ventilator with PEEP of 5, FiO2 of 0.5, being resuscitated with lactated ringer. Mean arterial pressure is still 62. What is the vasopressor of choice and target map? A. Dopamine and dobutamine and target map would be more than 65. B. Norepinephrine, target map more than 65. C. Vaso, target map 65. Give norepinephrine, target map should be 80 to 85. क्या देना है, कितना मैप रखना है, क्या हमारे जहन में है? ठीक है. बी, ज़्यादा मैप नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं है, पेशेंट अच्छा हो जाएगा हमारा. नहीं करना. चलें, बिल्कुल. नॉरएपिनेफ्रीन इज़ आवर चॉइस एंड मैप जो टारगेट मैप है वो मोर देन और इक्वल टू 65 आपने रखना है. दीज आर द रिकमेंडेशंस. इसमें हमारे पास अगेन एक स्टडी थी जिसमें 29 सेंटर्स थे, 776 पेशेंट्स थे. पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया. एक का मैप का टारगेट 65 से 70 रखा, दूसरे का मैप का टारगेट 80 to 85 रखा. प्राइमरी आउटकम्स 28 डे सर्वाइवल था इनमें एंड सर्वाइवल विदाउट ऑर्गन सपोर्ट. सेकेंडरी आउटकम्स वर डोज ऑफ वेजोप्रेसर्स एंड एट्रियल फिब्रिलेशन. रिजल्ट्स क्या थे? रिजल्ट्स ने शो किया कि आपका मैप कम है ज़्यादा है, उसमें इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. बट वो ग्रुप्स जिनका मैप आपने कम रखा था उनमें आपको कम डोज ऑफ वेजोप्रेसर देनी पड़ी, प्लस उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन के इंसिडेंसेस कम हुए. तो इसने ये बताया कि एट लीस्ट विद टारगेटिंग लेसर मैप आप ये चांसेस कम करते हैं और इट इज़ अ बेटर चॉइस इन लाइट ऑफ दिस. आप मैप का टारगेट कम रखें इंस्टेड कि आप उसको ज़्यादा रखें, जैसे कि सब आप लोगों को भी पता है. एक अब हमारे पास आगे मेटा एनालिसिस हुआ, उसमें नॉरएपिनेफ्रीन को
दूसरे वेजोप्रेसर्स के साथ देखा गया. 11 randomized control trials was done with 4,800 participants. Primary outcome was time to achieve target map and 28-day mortality. Secondary outcome were length of stay, incidence of arrhythmia and vasopressor free days. Norepinephrine and other vasopressors. Primary outcome में difference नहीं था 28-day mortality में and time to achieve map. However, difference was there in incidence of arrhythmias. P value was significant. So again, in the light of this, norepinephrine is still a better choice. आप उसको चूज़ करेंगे अपने पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए. आप अपना मैप को लोअर लेवल पे आपका टारगेट होना चाहिए अपने पेशेंट की रिससिटेशन को गाइड करने के लिए, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ एरिथमियास कम हैं हमारे पास. तो ये हमें इन्होंने गाइड किया. नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है अगेन सेप्टिक शॉक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने टाइम से चीज़ें करनी है. व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टाइम टू स्टार्ट नॉरएपिनेफ्रिन? कब स्टार्ट कर देंगे? So the answer was given by this randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. It was sensor trial. 310 patients थे. इनमें जो patients थे वो more than 18 years थे with MAP of less than 65 and infection and as suspected cause were enrolled. Infection था. Patients excluded who met the septic shock diagnostic criteria for more than 1 hour, जिनको गुजर गया था अराइवल में. इस पेशेंट्स में आपने एक आर्म को दिया 3.5 माइक्रोग्राम पर मिनट नॉरएपिनेफ्रिन, दूसरे आर्म को आपने दिया 5% डेक्सट्रोज एज प्लेसिबो. प्राइमरी आउटकम वाज शॉक कंट्रोल बाय 6 आवर्स. ये देखना था. शॉक कंट्रोल क्या था? सस्टेन्ड मैप ऑफ मोर देन 65 फॉर 15 मिनट्स and 2 consecutive hours of urine output of more than 0.5 ml per kg per hour और 10% डिक्रीज इन सीरम लैक्टेट फ्रॉम द बेसलाइंस. अब इसने हमें क्या बताया? तो कंक्लूजन्स में हमारे पास शॉक कंट्रोल बाय 6 आवर्स वैसे प्राइमरी आउटकम है, पहले देख लेते हैं. सेकेंडरी में मोर्टेलिटी एट 28 डेज, शॉक रेजोल्यूशन इन आवर्स, नीड फॉर ओपन लेवल नॉरएड एंड न्यू ऑनसेट एरिथमिया. इट शोड कि द पेशेंट्स हु वर रिसीविंग नॉरएपिनेफ्रिन they had better control of shock by 6 hours as compared to those who were not receiving it. 28-day mortality पे कोई फ़र्क नहीं था. Shock resolution, need for open label norepinephrine. इसका मतलब ये है कि आपने किसी पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रिन दी थी, शॉक रेजोल्यूशन हुई थी और आपने उसकी टेपर डाउन करके स्टॉप कर दी थी, लेकिन उसको फिर से ज़रूरत पड़ गई, तो ये ओपन लेबल का ये मतलब है. ये और न्यू ऑनसेट एरिथमिया, ये सारे इस ग्रुप में जिसमें अर्ली इनिशिएशन ऑफ नॉरएड हुई थी कम थी. दे वर सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू द प्लेसिबो. सो अगेन आपने पेशेंट को, अगर आपके पेशेंट को वेजोप्रेसर्स की ज़रूरत है और आप उसको टाइमली इनिशिएट करते हैं, तो आप उसकी बहुत सारी जगहों पे उसकी हेल्प करते हैं. इट इज़ बेटर टू इनिशिएट इट टाइमली. So how do you define early norepinephrine? The time period How is early? 6. How early? सर रिसेंटली अब हम एंड में अब जाते हैं. ये मैं सारी चीज़ें आपको What the trial says, बट द ट्रायल सेज कि एज अर्ली एज within 1 hour. within 1 hour, as early as 1 hour, within 1 hour. Where is this trial from? Thailand. Thailand. Who would allow a patient with septic shock to give dextrose? Yeah, only It's unsafe practice. This is unethical. unethical. This is And unethical. no, if there was any standard protocol guidelines, nobody would allow to give 5% dextrose water. It's not even a fluid of choice in a patient with septic shock. As a vasopressor. There were 21% mortalities in one and 50.5 in one. So you killed 6% of the people, and you're bringing a study from Thailand, which is a randomized control. I don't know how the randomization was done. Who would allow 5% dextrose water? I would answer the question. Actually, there is a misconception in it. When this trial is presented, people think that these patients were resuscitated with 5% dextrose.
No, they were not resuscitated. On one side, there was an infusion pump. In the control group, there was an infusion pump. One had 50 mils of 5% dextrose water, and the other also had 5% dextrose water, 50 ml. In one composition, there was norepinephrine added, and on the other side, norepinephrine was not added. So it was just to It was blind. just 50 ml. Just to blind. Just to blind, and all the arrangement was similar. It was only 50 ml. 50 ml, 5% dextrose, because norepinephrine is actually diluted in 5% dextrose water. So there were two actually infusion pumps, one in the control group, just to keep the nurses blind, that they didn't know which infusion pump has norepinephrine and which infusion pump doesn't have, right? So it was only 5%. These patients were not resuscitated with 5% dextrose. They were resuscitated with 30 ml per kg body weight fluid. So this is the answer. Next. A study was done that showed association of vasopressin plus catecholamine vasopressors versus catecholamine alone, and it was a meta-analysis. It showed that there is decreased incidence of atrial fibrillation in the patients who were given norepinephrine with vasopressin and as compared to the patients who were given norepinephrine alone. Also, there was a reduction in 28-day mortality ऐसे उन पेशेंट्स में जिनमें ये कॉम्बिनेशन दिया गया एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रीन. सो ये एक फर्दर स्टेप था कि अगर आपका पेशेंट को आप नॉरएपिनेफ्रीन दे रहे हैं, स्टार्ट हम नॉरएपिनेफ्रीन से ही करेंगे, और अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा मैप तो आप क्या चीज़ ऐड करेंगे, तो वेजो कुड बी अ चॉइस, और उसमें 28-day मोर्टेलिटी इस कॉम्बिनेशन में और एट्रियल की जो इंसिडेंसेस हैं वो इसमें कम है. सो use norepinephrine as first line vasopressors. Septic shock है with vasopressors, your target should be MAP of 65 mmHg and consider invasive monitoring of arterial BP. If central line is not available, consider initiating vasopressors peripherally. MAP is less than 65, despite low to moderate norepinephrine, consider adding vasopressin. If cardiac dysfunction with hypoperfusion despite adequate volume, then add dobutamine to norepinephrine. आप norepinephrine के साथ फिर एक और चीज़ ऐड करेंगे, dobutamine, और switch to epinephrine. So ये सारा हमारा इसकी एक वो थी कि इनिशियल फ्लूइड रिससिटेशन हमने 30 ml per kg पर देना है इन 3 hours. एविडेंस हमारे पास इन ट्रायल से आया था, और इन टारगेट्स को अचीव करना है मोर्टेलिटी को कम रखने के लिए. अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली. फ्लूइड का हमने पढ़ लिया कि आपने उसको 30 ml per kg से पेशेंट को रिससिटेट करना है. रिंगर लैक्टेट आपकी चॉइस है. आपने एंटीबायोटिक को 1 घंटे में देना है, और आपके पेशेंट को अगर वेजोप्रेसर्स की ज़रूरत है तो आप विदिन 1 hour उसको स्टार्ट करेंगे. अब हम देखते हैं, और मेल केम टू द ER विथ फीवर एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट. He has diabetes, hypertension and ischemic heart disease. His MAP is 55, heart rate is 115 per minute regular, and lactate is 9 millimoles. What is your diagnosis? क्या जहन में आता है? क्या डायग्नोसिस है? सो गए हैं सारे? डायग्नोसिस में ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसको LIT आया है, और क्या पेशेंट शॉक में है या नहीं है? पेशेंट शॉक में है हमारा, ठीक है. सिमिलर एक सिनेरियो है. अ 50-year-old मेल केम टू द ER विद ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट. ही हैज़ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़. His MAP is 55, heart rate is 115 per minute regular, and lactate is 9 ml. Urine complete field is full of pus cells. क्या है पेशेंट को? यूरोसेप्सिस है. पेशेंट शॉक में है. पेशेंट शॉक में है, ठीक है. आपने एक्सरेज भी देख लिए हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी. क्या ख्याल है? सिनेरियो 1 में आप पेशेंट को फ्लूइड्स देंगे, वेजोप्रेसर्स देंगे, या दोनों स्टार्ट करेंगे? ऐसे पेशेंट का शॉक मैनेज करने के लिए दोनों करेंगे, ठीक है. अच्छा, और
क्या करेंगे? अभी हमने स्टेप वाइज देखा कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्लूइड देना है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम पेशेंट को फ्लूइड देंगे, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम फ्लूइड से रिससिटेशन को स्टार्ट करेंगे, तो इस पेशेंट में हम फ्लूइड देंगे। सेम अब ये सिनेरियो है, देख लें इसे एक बार। इस पेशेंट में क्या करेंगे? फ्लूइड देंगे, वेज़ोप्रेसर्स देंगे, या दोनों करेंगे? Big heart, cardiomyopathy. देंगे फ्लूइड, दे दें इसे 30 ml पर kg के हिसाब से फ्लूइड? नहीं Give vasopressors. जी, आंसर है इसको हम वेज़ोप्रेसर्स देंगे। आप ये सोचें कि ये दो पेशेंट दो डिफरेंट साइज ऑफ बकेट्स की तरह हैं। एक में 30 ml पर kg के हिसाब से पानी आ सकता है और उसमें मुझे कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। इस पेशेंट में जो कि ऑलरेडी बिग हार्ट पल्मोनरी एडीमा है, इसकी बकेट सोचें छोटी है, इसमें मैं 30 ml पर kg के हिसाब से पानी दे दूंगी तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा? Spill होके lungs में हो जाएगा. बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे मुझे भी और मेरे पेशेंट को भी। तो हमने जो 30 ml पर kg के हिसाब से पढ़ा था कि इज़ इट ओके फॉर बोथ साइजेस? नो, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, पीडल एडीमा हो जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा ऐसे पेशेंट। सो वन साइज डज नॉट फिट टू ऑल। आप देखेंगे कि आपके पेशेंट किस चीज़ से फर्स्ट आवर इन प्रेजेंटेशन किस चीज़ से फ़ायदा लेगा, फ्लूइड से लेगा या वेज़ोप्रेसर से लेगा, आप वो इनिशिएट करेंगे। बाकी आपको पता है कि आपने फ्लूइड देना है तो कौन सा देना है, किस हिसाब से देना है, वेज़ोप्रेसर देना है तो क्या चॉइस है, कब स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये बात अब आपको क्लियर है, लेकिन पेशेंट को भी देखना है कि उसमें मैंने क्या चीज़ पहले करनी है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज़ अगेन कि एक रिलेशनशिप है बिटवीन फ्लूइड लोडिंग एंड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सर्जरी। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस इसमें वाई एक्सिस में पेशेंट्स अंडर रिससिटेटेड या ओवर रिससिटेटेड है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपकी दोनों सूरतों में बढ़ती हैं, इफ़ द पेशेंट इज़ अंडर रिससिटेटेड, ओवर रिससिटेटेड। बट इन ICU लाइक आपके पेशेंट जो कि क्रिटिकली इल हैं, उसमें आपकी गलती की गुंजाइश और कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। क्यों? बिकॉज इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, उनको आपको बहुत केयरफुली फ्लूइड देना और मॉनिटर करना है। इवन इन ICU if you do right things on right time, there are still higher chances of mortality. So just think कि अगर हम गलत चीज़ें करने लग जाएं तो mortality कहाँ चली जाएगी। अब हम देखते हैं आगे। Now almost 3 hours have passed. She has been given almost 30 ml per kg so far of the fluid. She requires norepinephrine 0.2 microgram per kg per minute to maintain MAP of more than 65. Urine output is adequate. What is the optimal way to assess that she needs more fluid or not? A, आप उसका physical examination करके assess करेंगे। B, आप उसकी CVP values देखेंगे, on monitor is 10. C, आप उसका हार्ट रेट चेक करेंगे, सिस्टोलिक बीपी में कोई फ़र्क आया है या मैप में फ़र्क आया है, आपको पता लगेगा कि देना ही नहीं देना। D इज़ पैसिव लेग रेस विद कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट। क्या करेंगे आप पेशेंट को D, B, D पैसिव लेग रेस करेंगे विद कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट, हार्ट रेट और मैप C, ठीक है, सही। आंसर इज हम पेशेंट में पैसिव लेग रेस टेस्ट करेंगे फॉर कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट। दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट जो आपको बताएगा कि आपका पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है या नहीं है, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है इस टेस्ट में। कैसे? अब हमारे पास स्टैटिक मेथड्स हैं, डायनामिक मेथड्स हैं। स्टैटिक मेथड्स में वही हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, उसमें आप हार्ट रेट लेते हैं, बीपी लेंगे, ठीक है, और आप उनका फिज़िकली चेक करेंगे, एक्सरेज को देख रहे हैं, ठीक है। और जो अदर मेथड्स हैं जिसमें हम सेंट्रल वीनस प्रेशर ले रहे हैं। सो द एनालिसिस शोड कि ये सारी चीज़ें आपको 50% तक गाइड करती हैं। 50% हो सकता है कि आपका पेशेंट फ्लूइड रिस्पॉन्सिव हो सकता है कि हो,
आप उसको और फ्लूइड दे सकते हैं, हो सकता है वो ना हो, आप उसको फ्लूइड नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए नाउ वी मोस्टली रिलाई ऑन डायनामिक मेथड्स कि देखने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, फ्लूइड दें ना दें, पेशेंट बर्दाश्त कर लेगा नहीं करेगा। तो डायनामिक मेथड्स में हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड है हमारे पास जिसमें हम आईवीसी डायमीटर देखते हैं पेशेंट्स में, उसमें, और उसके अलावा हम साथ ये देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड से हम लंग्स को देख सकते हैं कि लंग्स कोई वेट तो नहीं है, उसमें कर्ली भी लाइंस तो नहीं आ रही। साथ हम यही पैसिव लेग रेस टेस्ट करते हैं, पैसिव लेग रेस टेस्ट करते हैं, इससे हम कार्डियक आउटपुट मॉनिटर करते हैं। अब ये टेस्ट हम कैसे करते हैं, पेशेंट को बेसिकली हम इसमें अभी फ्लूइड्स नहीं देते। इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता नहीं आपको पेशेंट को चाहिए या नहीं चाहिए, आप वो एक बोलस दे दें उसे और उसे ना चाहिए हो, तो ये टेस्ट फिर इसलिए बेहतर रहता है। इसमें यह है कि पेशेंट पहले हम इस पोजीशन में इसको लेटाते हैं, उसके इसमें हम पेशेंट का कार्डियक आउटपुट मेजर करते हैं थ्रू एको, ठीक है। और फिर हम पेशेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, उसमें लेग्स ऊपर हो जाती हैं और पेशेंट नीचे स्ट्रेट हो जाता है। इसमें ये होता है कि जो वीनस रिटर्न होता है वो अराउंड 250 टू 80 टू 300 ml होता है और वो एक्ट करता है एज अ बोलस, वो बोलस के तौर पे जाता है, ठीक है। और जब वो बोलस के तौर पे जाता है तो फिर हम एको से देखते हैं कि क्या पेशेंट का कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ किया है। अगर पेशेंट का 10% भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करता है तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने पेशेंट को फ्लूइड देंगे तो ही माइट बी फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो मेथड्स हैं वो पल्स प्रेशर वेरिएशन है, इससे हम चेक करते हैं। इसमें ऑटोमेटेड मॉनिटर्स होते हैं, उसके साथ ये अटैच होता है, ये वेरिएशन फिर ये हमें बताता है। ये बेसिक जो हमारी फिजियोलॉजी है फ्रैंक स्टर्लिन की, इसमें यह है कि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास वाई एक्सिस में है, प्री लोड हमारे पास एक्स एक्सिस में। आपने पेशेंट को फ्लूइड चैलेंज दिया, उसका प्री लोड बढ़ाया तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जिस पेशेंट का गुड सिस्टोलिक फंक्शन है। आपने पेशेंट को फ्लूइड चैलेंज दिया, उसका प्री लोड बढ़ाया, बट माइट भी हो सकता है उसका पुअर सिस्टोलिक फंक्शन हो, ठीक है, उसमें हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। ये एक स्लाइड है जो कि जो भी मैंने आपको पैसिव लेग रेज के बारे में बताया था उसमें है, और ये वही है कि आप जो कार्डियक आउटपुट है उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। इसमें हम स्ट्रोक वॉल्यूम को करते हैं थ्रू एन एको, उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को वेलोसिटी टाइम इंटीग्रल के साथ मेजर करते हैं एको से, फिर हम उसे इस फार्मूला में डालते हैं और कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। ये वही है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड में हम आईवीसी देखते हैं, अगर डिस्टेंसिबिलिटी मोर देन 18% है या कोलैप्सिबिलिटी मोर देन 50% है, देन योर पेशेंट इज़ फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, आप इस पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हैं। एंड इट इज़ अ गुड मेजर एज कम्पेयर टू द स्टैटिक मेजर्स। ये गुड मेजर्स हैं। अल्ट्रासाउंड से आईवीसी देखना, लंग्स देखना, ठीक है, आपको कार्डियक आउटपुट मॉनिटर करना, ये गुड मेजर्स हैं और ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे एज कम्पेयर टू द स्टैटिक मेजर्स। यू कैन बी एक स्लाइड है जो कि रफली एक वो देखते हैं कि एक पेशेंट है, उसका आपने कार्डियक आउटपुट मेजर कर लिया, ठीक है, कार्डियक आउटपुट आपने एको से मेजर कर लिया, इसमें वो लो है या नॉर्मल है। नेक्स्ट आपने पेशेंट को देखा कि पेशेंट फ्लूइड टॉलरेंट है या नहीं है। फ्लूइड टॉलरेंट का मतलब ये है कि क्या अल्ट्रासाउंड से हमने देखा कि उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ है या नहीं, उसके जो लंग्स हैं उसमें कर्ली भी लाइंस हैं या नहीं, और उसकी कोई वीनस कंजेशन है या नहीं। अगर तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं कि आपका पेशेंट सेफ़ है, उसमें अभी ये चीज़ें नहीं हैं, डेवलप नहीं हुई हुई, आप ऐसे पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका पेशेंट उस फ्लूइड को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं करेगा, वो आप अगेन पैसिव लेग रेज से टेस्ट करेंगे। और अगर आपका पेशेंट फ्लूइड टॉलरेंट नहीं है, उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो आप उसको नहीं देंगे, आप जाएंगे नहीं, आप नहीं देंगे, क्योंकि आप उसका रिस्क बढ़ा रहे हैं, आप उसकी मोर्टेलिटी बढ़ा रहे हैं, आप उसको दूसरे तरीके से रिससिटेट करेंगे, ठीक है, आप उसको वेज़ोप्रेसर से रिससिटेट करेंगे। अब एक और चीज़ जिससे हम अपना जो सेप्टिक शॉक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं,
उसमें हमारे पास एक ट्रायल हुआ था, एंड्रोमेडा शॉक ट्रायल. इट वाज अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल. 422 पेशेंट्स वर एनरोल्ड विद सेप्टिक शॉक, और उसमें हमारे पास 2 आर्म्स थी. ठीक है, एक पेशेंट में हम मेजर कर रहे थे पेरिफेरल परफ्यूजन, कैपिलरी रीफिल टाइम, वो मेजर कर रहे थे, और एक जो आर्म थी उसमें हम लैक्टेट मेजर कर रहे थे. लाइक हम लैक्टेट को भी बड़ा वो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम उसमें लैक्टेट मेजर कर रहे थे. अब एक आर्म में आप पेरिफेरल परफ्यूजन जो मेजर कर रहे थे वो 30 to 60 मिनट्स के हिसाब से कर रहे थे, और जो लैक्टेट है वो 2 आवर्ली मॉनिटर हो रहा था. इसमें जो मीन एज थी वो 63 थी, अपाचे स्कोर 22 था, मीन सोफा स्कोर वॉज 9.65, और प्राइमरी आउटकम जो हम देख रहे थे वो 28 डे मॉर्टेलिटी देख रहे थे. अब इसने क्या हमें कंक्लूजन दिया, 28 डे मॉर्टेलिटी एंड ऑर्गन डिसफंक्शन एट 72 आवर्स, कि वो पेशेंट्स जिसमें आप पेरिफेरल परफ्यूजन को लेकर चल रहे थे कि अब इसकी कैसे हम इसको रिससिटेट करें ना करें, उसमें जो मॉर्टेलिटी थी वो थोड़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू द लैक्टेट टारगेट रिससिटेशन, बट इट वॉजंट वेरी सिग्निफिकेंट. हाउएवर ऑर्गन डिसफंक्शन एट 72 आवर्स वॉज सिग्निफिकेंट, जिनमें आप कैपिलरी रीफिल टाइम देख रहे थे एज़ कम्पेयर टू द लैक्टेट. पी वैल्यू सिग्निफिकेंट थी इसमें. ठीक है, सो ये बताता है कि ये गुड स्ट्रैटेजी है कि आप इसमें पेशेंट में बेड साइड मैथड करें कि आपका पेशेंट की कैसी फ्लूइड रिससिटेशन हो रही है. इसमें ये है कि ये आपको एक तो बेड साइड अवेलेबल है, लैक्टेट आपका लैब से है, वो थोड़ा टाइम भी लगाता है क्लियरेंस में, और जब तक उसकी लैब वैल्यूज आ रही होती हैं, क्लियर हो रहा होता है, तब तक आपके पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेशन जारी ही होती है. पेशेंट को शायद ज़रूरत ना हो फ्लूइड की, लेकिन वो फ्लूइड तब तक जाएगा, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा फ्लूइड की वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है. ठीक है, और मॉर्टेलिटी इंक्रीज कर, मॉर्टेलिटी पे फ़र्क आ सकता है. सो सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन ऑफ 2021 recommends using capillary refill time to guide resuscitation as an adjunct to other measures of perfusion. I have also a link जिसमें ये जो कंट्रोल ट्रायल था ये ग्लेन ने किया था, और ये लिंक उन्होंने शेयर किया था कि किस तरह से इस मेथड में उन्होंने, क्या उनका मेथड था कि उन्होंने कैपिलरी रीफिल टेस्ट किया था. अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो सारी जो हमारी कहानी आ गई कि हमने सेप्टिक शॉक को कैसे मेजर करना है, सारा हमने पढ़ लिया. अब हम इसको समराइज़ करेंगे. समराइजेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप विद इन 1 आवर अपना जो सेप्टिक बंडल का मैनेजमेंट का वो है वो आप इनिशिएट कर देंगे. ठीक है, 1 आवर के अंदर. क्यों? क्योंकि ये मॉर्टेलिटी को, पेशेंट की मॉर्टेलिटी को डिक्रीज़ करेगा. आपके पास पेशेंट है, आप उसका इनिशियल लैक्टेट मेजर करें. ठीक है, आप उसकी दूसरी लैब्स भेजें, आप उसके ब्लड कल्चर्स भेज दें. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको विद इन एन आवर एडमिनिस्ट्रेटर कर दी. ठीक है, आपने उसको फ्लूइड रिससिटेशन 1 आवर के अंदर स्टार्ट कर दी. डू नॉट डिलेट कि कोई आ रहा है मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ. करें, आप उसको देखें, अप्रोप्रिएट फ्लूइड का आपको पता लग गया है. ठीक है, कितना देना है वो आपको पता लग गया है, आप उसको स्टार्ट करें विद इन 1 आवर. और साथ अगर आपका पेशेंट को वेज़ोप्रेसिस की नीड है, वो बोलसेस, अच्छा ये बात है कि जब आप फ्लूइड ER में दे रहे होते हैं, ये नहीं होता कि मैंने तो ड्रिप चला दी है और वो जा रहा है और मेरा पेशेंट को बोलस जा रहा है. जो रिससिटेशन होती है ना 30 ml पर kg की, वो हमेशा बोलसिस के हिसाब से होती है. आपने 500 ml का बोलस दिया 10 मिनट्स में, आपने पेशेंट को असेस किया, नहीं उसका रिस्पॉन्स आया, आपने फिर से 500 ml का बोलस दिया. ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स आया. ठीक है, तो उसमें आपने ये करना है कि अगर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप वेज़ोप्रेसिस स्टार्ट करा दें. किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, आपको पता है कि कौन सा वेज़ोप्रेसर सही है, आपको पता है कि उसको जल्दी स्टार्ट करा देना है, और उससे आपके पेशेंट की मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी और इवन उसका ICU स्टेज पे भी फ़र्क पड़ जाएगा. रिस्पेक्ट टाइम, इट मेक्स डिफरेंस. हमारी सारी जो डिस्कशन थी उसमें एक टाइम इम्पॉर्टेंट था, और दूसरा हमने क्या चीज़ें किस हिसाब से स्टार्ट करनी है और कौन सी करनी है वो इम्पॉर्टेंट था आज की उसमें. सो आवर जो टेक होम मैसेजेस वॉज कि क्यू सोफ़ा को हमने ओरिजिनली डेफिनेशन से निकाल दिया. बैलेंस क्रिस्टलॉइड्स रिड्यूसेस रीनल रिप्लेसमेंट नीड एंड मॉर्टेलिटी. एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन 1 आवर प्रेफरेबली. Lactate should be measured in first hour for all the cases. Fluid should be given up to 30 ml per kg and completed in 3 hours. It should be completed. जो आपके जो initial bolus है.
Consider early initiation of NORAD. Target map is more than 65 and dynamic parameters are now preferred over static parameters. And thank you.